Hello students, once again you are most welcome. Here I am Devesh Singh. Now let's proceed this new chapter. The chapter which is going on. Today we have to read the fifth part of this chapter. The Maharajas and cities reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. Before this passage you have read that Maharaja has killed 99 tiger and now only one tiger remained to complete his ambition, so he is very looking in anger, looking very upset as one tiger more remained for complete his requirement. So he had this one thought during the day and the same dream at night. And during the day and night, every time the Tiger King thought about this matter. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. और फिर उनके फादर इन लॉ के जो किंगडम था वहाँ भी अब टाइगर के जो फार्म थे उस वहाँ सूखे पड़ चुके थे, अर्थात वहाँ भी अब टाइगर नहीं थे. It became impossible to locate tiger anywhere, and in the neighboring state he had collect information from there. Now it was not easy for him to locate one tiger. At only one more was needed, और केवल एक की ज़रूरत है. If he could kill just that one beast, if he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. अगर वह एक सिंगल बिस्ट को भी मार लेते तो महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट. महाराजा के पास कोई भय नहीं रह जाता. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग आल्सो टुगेदर, और वो हमेशा के लिए टाइगर हंटिंग का काम भी छोड़ देते, ऐसा सोचा उन्होंने. But he had to be extremely careful. He had to be extremely careful with that last tiger. लेकिन वह इस लास्ट टाइगर को लेकर काफ़ी अधिक केयरफुल है. What had the late chief astrologer said, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने उनके बारे में बताया था, इसको लेकर उस लास्ट टाइगर से काफ़ी अधिक अपसेट रहते थे. Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. 99 टाइगर्स के किल करने के बाद महाराजा हमेशा जो है 100 टाइगर के लिए बीवेयर रहते थे, सावधान रहते थे. ट्रू एनफ, बिल्कुल सत्य था. द टाइगर वॉज अ savage beast after all. All around when we talk that the tiger is a very dangerous animal and one had to be wary of it, and having knowledge about its qualities we have to worry about it. Now
Okay. But there was that 100 tiger to be found. Where was? लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि 100वां टाइगर वो खोजे कहाँ. It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger, and at that time, tiger's milk was easy than to find a tiger. Thus the महाराजा was sunk in gloom, और इसीलिए महाराजा काफ़ी उदास थे, काफ़ी परेशान थे. But soon came the happy news which dispelled that gloom. लेकिन उसी बीच एक खुशखबरी आई, जिस खुशखबरी ने महाराजा को सारी उदासी से बाहर कर दिया. In his own state, ship began to disappear frequently from a hillside village. उनके स्टेट में जो शिप थी वो डिसअपियर होने लगी, गायब, धीरे धीरे गायब होने लगी. हिल साइड के एक गांव के हिल साइड से शिप धीरे धीरे गायब होने लगी थी. It was ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Birasami Nekar, both famed for their ability to sail shipful. और ऐसा भी सूचना आया कि ये टास्क जो था शिप को मारने वाला एक खादर मियाँ साहब या बिरासमी नेकर का नहीं है, जैसा कि दोनों के दोनों टाइगर को शिप को एक साथ सैलो करने के लिए फेमस थे. सो श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क. इसलिए क्लियर हो गया कि जो वर्क है ये टाइगर का ही है. द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा. गांव वालों ने दौड़ के महाराजा को सूचना दे दिया. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. जो महाराजा थे वो सारे गांव वालों ने जब महाराजा को इन्फॉर्म किया तो महाराजा काफ़ी खुश होकर के क्या किए, उन्होंने गांव के लोगों के लिए 3 साल के लिए सारे टैक्स से उनको मुक्त कर दिया. यानी 3 साल का टैक्स लाभ उनको दिया, 3 साल के कर से उनको छूट दे दिया. द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड. लेकिन इस सब के बाद भी टाइगर अभी मिला नहीं. And it seemed as if it had wantonly hid itself in order to float the Maharaja's bill. और ऐसा प्रतीत होता था कि टाइगर खुद को छुपा लिया है, महाराजा की इच्छा को दफन करने के लिए वो खुद को छिपा लिया है, ऐसा लोग सोच रहे थे. The Maharaja was equally determined, but here Maharaja was also equally determined. Why? He refused to leave the forest until the tiger was found. क्योंकि उन्होंने भी डिसीजन ले लिया जब तक वो किंग उनको फॉरेस्ट मिल नहीं जाता, वो लाइन जब तक मिल नहीं जाता, टाइगर मिल नहीं जाता, तब तक वो जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे. As the day passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. जैसे जैसे समय बीतता गया, महाराजा काफ़ी अधिक गुस्से में आते गए. उनके गुस्से के शिकार कई ऑफिसर्स हुए जिनकी जॉब छूट गई, जॉब चली गई. One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered to double the land tax forthwith. एक दिन जब महाराजा काफ़ी अपने गुस्से के चरम पर थे, उन्होंने दीवान को बुलाया और पूरे राज्य के
लैंड टैक्स को दोगुना करने का आदेश दे दिया। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट, गांव के लोग भी जो हैं वो काफ़ी डिसकंटेंट होंगे, असंतुष्ट होंगे, नाराज़ होंगे, ऐसा दीवान ने राजा को बताया। दीवान ने ऐसा राजा को बताया। देन आवर स्टेट टू विल फॉल टू प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जब लोगों में नाराज़गी बढ़ेगी तो बताया कि दीवान ने राजा को कि उनका स्टेट भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों चला जाएगा। इन दैट केस यू में रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग। राजा काफ़ी नाराज़ होकर दीवान से बोले, अगर ऐसा होता है तो उस केस में तू अपने पोस्ट से रिजाइन दे देना। द दीवान वेंट होम कन्विंस दैट इफ द महाराजा डिडंट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट वुड बी कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक मीन्स होता है इट्स डेंजरस, कॉज ऑफ बिग डेंजर। महाराजा को भी लग गया था कि अगर कहीं से भी अगर ये चूक हुआ, दीवान को लग गया था अगर महाराजा को टाइगर नहीं मिला तो इसका जो परिणाम है वो काफ़ी डेंजरस होगा। सो ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। लेकिन अचानक उसके जान में जान तब आ गई। किसके जान में जान? तो उस दीवान के जान में जान तब आ गई जब अचानक उसने एक टाइगर को देखा जो मद्रास के पीपल पार्क से भाग कर आकर उसके घर में छिप गया था। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the sea. Midnight के time, when there was fully peace in the locality, everyone was slept. The Diwan and his aged wife dragged the tiger and they pushed the tiger inside of the car into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. और दीवान खुद जो है कार को ड्रॉप करके उस एरिया में ले गया जहाँ महाराजा जो थे हंटिंग कर रहे थे। When there is the forest, the tiger launched his satyagraha and refused to get out of the car. जब वे वहाँ पे लेके पहुँचे तो उस समय the tiger was not agree and he refused to get out of the car. He was frightened that there is something bad with him, something wrong with him. So he launched his satyagraha and refused to get out of the car. Diwan was thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground. But Diwan was also tired. Diwan was also extremely tired in his effort. अपने प्रयास करते करते वो भी काफ़ी थक गया था और अंततः उसने पूरी ताकत लगा करके और उस टाइगर को कार से बाहर ग्राउंड पे ढकेल दिया और इस तरह से फाइनली द टाइगर वाज नाउ इन द फॉरेस्ट।